हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 22 ज्योग्राफी का, यानी भूगोल का चैप्टर जो 22 है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें आज हम करेंगे लैंड यूज़ एंड एग्रीकल्चर, यानी भूमि का उपयोग और कृषि। ये चैप्टर जो होगा कई मानने में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो एनआईएस में पढ़ते हों, चाहे सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों, इवन कि जो बच्चे कॉम्पिटिशन तैयारी करना चाहते हैं, चाहे यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सिलेबस बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन ये सब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is the most important here. Cattle is rearing. There is important here. Cattle rearing. The cattle rearing is an important economical activity in India. Milk and milk product, butter, ghee, etc. is a meat, eggs, and the leathers and silk are raw material for industries. There is the most important here. Cattle rearing is important for the economic activity in India. Milk and milk product, butter, ghee, and the meats, egg, leather, and silk are raw material for industries. Animal provide a large is a proportion of energy required in a farm sector. The bulk, buffalo, horse, and ponies is a camel sector are used as tough animal. The are use of agricultural activity like a plugging of field, driving of water from well, and for a carrying of load. It is to be noted here that with the rise of is a mechanized at the farming, the use of animal power from operation in one gradually decline. This is a more true of a green revolution area. There is important here the green revolution area, and hair of the skin of animal are used as a raw material for a leather industry. Sheep, goat, and camel provides a wool. There are sheep, goat, and camel provide a wool, and these dungs are used to the biomass gas production and making of manure. You know that there is cow there is a use for the biomass gas production and from making of manure fertilizer. India is a leading producer of milk in the world. It is due to the initiatives attack our government thought there is Operation Flood. You know that there is Operation Flood here. Under this program, good breed of cows and buffaloes, which yard more milk. There is a more milk. There is only M here. Has been introduced. Cooperative societies in this field were encouraged. The modern dairy farm produce a milk powder, butter and cheese, and condense of milk and cream and ghee along with the milk here. The largest number of livestock is found in Uttar Pradesh, is flowed by the state of Rajasthan, Bihar, Madhya Pradesh, and this four states account for 44% of total livestock of India. The density of animal in India is the highest in the world. It is about 130 head of livestock per 100 hectare of land. The percentage of area under permanent pasture is very low in a comparison to the density of animal population. There is a cattle, buffalo, sheep, goat are important.
livestock in India. That is important. The next year, distribution of animal resource in India. There is a most important point. Distribution of India. There is a animal resource. Cattle rearing in India is an important economical activity. The cattle population account for the 43.5% of the total livestock in the country. The largest number of cattle in their country is found in Uttar Pradesh. Except Haryana, Punjab and Rajasthan in other states of India, the number of cattle are greater among to livestock. The yard is a milk and from Indian cow is the lowest in the world. It is only 188 liter per animal per annum in India, while the Netherlands it is a 4,200 liter, differing by about 23 times. Buffalo account for the 80% of total livestock in India. The outer number other animals in the state of Haryana, Punjab, for the milk point of view, a buffalo are important as they account for about 53% of the total milk production in India. There is the most important distribution of animal resource in India. Sheep are found to mostly in a cold and dry region of country. They are a very few in area which are a very hot and receive heavy rain during to the monsoon. And they develop hooves disease in the hot and mid climate. Rajasthan, Tamil Nadu, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Andhra Pradesh and Uttar Pradesh are major states where sheep are in a large number. Among the other animals, goat, camel, horse, yaks and meteors are important. Their goat is raised mainly for the meat and milk. In Rajasthan, goat are greater in a number than other animal. Camel are rare in West Rajasthan and the adjoining area of Gujarat. And Haryana and Punjab, camel is called there are aeroplane of desert region are employee of the third desert of India. Horse are points are distributed all over the India, especially in Jammu and Kashmir, Uttar Pradesh, Bihar and Madhya Pradesh and Punjab. Yak are found in the mountainous area of Jammu and Kashmir, Haryana, Himachal Pradesh, Sikkim and Arunachal Pradesh. The meadows is found in the Nagaland and Arunachal Pradesh. There is a most important in this box the point the general condition of animal in India is very poor due to the lack of nutrition as afforded and the harsh hot and humidity weather condition. Also there is a lack of artificial insemination as a center and veterinary of hospital and doctors. यदि अगला पॉइंट की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है पशुपालन। देखिए पशुपालन कितना महत्वपूर्ण होता है और ये आप भली भांति जानते हो क्योंकि पशुओं से हमें बहुत कुछ मिलता है और बहुत कुछ हम यूज़ करते हैं। कहते हैं भारत में पशुपालन एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप है और दूध एवं दूध उत्पाद जैसे मक्खन, घी, मांस, अंडे, चमड़ा और सिल्क उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में हमें मिलते हैं। कृषि क्षेत्र में पशुओं द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्रदान की जाती है क्योंकि पहले के समय में आप देखते थे कृषि में जो होते थे पशुओं का इस्तेमाल किए जाते थे खेत को जुताई के लिए, हल चलाने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी। बैलों, भैंसों और घोड़े को जो है खट्टरों, ऊँटों का प्रयोग हल तथा विभिन्न वाहनों के खींचने आता था या सामान ढोने में किया जाता था। आज बेशक इलेक्ट्रॉनिक सामानों ने ले लिया हो लेकिन इसके जो है हम इसकी उपयोगिता को भूल नहीं सकते। कहते हैं आने वाला समय में लोग इन्हीं पे दोबारा रिटर्न होंगे क्योंकि जिन संसाधनों को उन्होंने विकास किया है वो संसाधन के जो है चलाने वाला ईंधन खत्म होने के कगार पे आ चुका है। इनमें से कुछ पशुओं के खेतों की जुताई करने में प्रयोग की जाती थी, कुछ पशुओं को कुओं से पानी खींचने के लिए उपयोग में लाया जाता था। कृषि कार्य एवं विभिन्न क्रियाकलापों के आज के युग में जो उधर मशीनों द्वारा संचालित तरीकों पर आश्रित होता जा रहा है, यानी इंसान जो है आज मशीनों पे जो है आश्रित हो गए हैं। परिणाम स्वरूप पशुओं द्वारा ली जाने वाले शक्ति का उपयोग घटता ही जा रहा है और देखा जाए तो ये पशु भी जो है अब कुछ भी करने लायक नहीं रह गए हैं। इन पशु को जो है आजकल देखोगे तो रोड पे ही नज़र आते हैं। कहते हैं पुराने समय में इनका बहुत अच्छा उपयोग किया जाता था और कृषि में भी उपयोग किया जाता था और पहले के टाइम में कॉस्ट भी अधिक होती थी, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो ये जो होते हैं रोडों पे ही घूम रहे होते हैं और कई तरह के एक्सीडेंट के कारण भी बनते हैं क्योंकि इंसानों ने जो है पशु
द्वारा ली जाने वाली शक्ति का उपयोग ही ख़त्म कर दिया है और मशीनों पर आश्रित हो गए हैं। लेकिन मशीन जो होते हैं आपको पता ही है कि ईंधनों पे चलते हैं और जो ईंधन ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा से इनको जो है पशुओं पर ही निर्भर होना पड़ेगा। तो लोग जैसे जैसे समय के साथ बदलते जा रहे हैं, कहते बदलते हुए देर नहीं लगेगा जब आप पशुओं का ही उपयोग दोबारा से करने लग जाओगे। इसलिए अभी भी संभलने का टाइम है, पशुओं को जो है सही रास्ता जो है देने का समय है। लोग ऐसे जो है पशुओं को रास्ते पे नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं इससे बहुत ही हानि होती है, जान मान की भी हानि होती है। कई बार मैंने खुद ही इस एक्सीडेंट को देखा है जहां गाड़ी चलती रहती है, पशु उसके ऊपर कूद जाते हैं। तो ये सरकार के लिए बहुत ही विडंबना भरी चीज़ है जिसको सरकार को जो इस पर तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और पशुओं को जो है संरक्षण प्रदान करना कई मायने में महत्वपूर्ण भी होता है। इस प्रकार के दृश्य उन क्षेत्रों में देखने को मिलता है जहां हरित क्रांति का पैकेज कृषि क्रियाकलापों को अपनाया गया है। पशुओं की खाल एवं चमड़े का कच्चे माल के रूप में चमड़ा उद्योग में प्रयोग होते हैं। भेड़, बकरी तथा ऊँटों के द्वारा ऊन प्रदान किया जाता है और उनके गोबर का प्रयोग जो है बायोगैस के उत्पादन में खाद बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिएगा पशु हमारे लिए कितना उपयोगी है और ये उपयोगी आने वाले समय में भी साबित करेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। भारत जो है विश्व के दूध उत्पादन में अग्रणीय देश है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत जो है विश्व में अग्रणीय देश है और यह सरकार द्वारा संचालित ऑपरेशन फ्लड के कारण ही हुआ है। और इस गतिविधि के अंतर्गत अच्छी उन्नत नस्लें की गाय भैंस जो कि अधिक दूध देती है उनके शामिल भी किया गया है। सहकारी समिति के जो इस दूध व्यवसाय में जुड़ी हुई थी उन्हें प्रोत्साहित कर जो है किया गया है। आधुनिक जो है दुग्धशालाएँ दूध पाउडर, मक्खन, पनीर, घी इत्यादि को दूध के साथ साथ जो उत्पादित भी करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो है सरकार द्वारा ऑपरेशन फ्लड को चलाया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में पशु संसाधनों का जो है किस प्रकार वितरण है तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत में मवेशियों का पालन महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलापों में से एक है। मवेशियों की संख्या भारत में जो है कुल पशुधन संख्या का जो है 43.5% है, यानी 43.5% है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देश में मवेशियों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में जो है देखी गई है। हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान राज्यों के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी मवेशियों की संख्या पशुपालन संख्या से ज़्यादा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय गायों के जो दूध की प्राप्ति की मात्रा विश्व में सबसे कम है, यानी भारतीय गायों से दूध की प्राप्ति की मात्रा विश्व में सबसे कम है और यह करीब जो है 188 लीटर प्रति गाय प्रति वर्ष ही है। तो काफ़ी कम देखा गया है कि 188 प्रति गाय जो है प्रति वर्ष ही है और जबकि नीदरलैंड में यह मात्रा 4200 लीटर प्रति गाय प्रति वर्ष है। तो समझ सकते हो अगर हम नीदरलैंड से तुलना करें तो भारत का जो है बहुत ही छोटा दिखता है। कहते हैं उससे देखो 4000 इसमें अधिक है और यहाँ 188 ही लीटर प्रति गाय प्रति वर्ष ही रखा गया है जो भारतीय मात्रा से करीब 23% अधिक है। भैंसों की संख्या देश के सकल पशुधन का जो 18% ही है। भैंसों की संख्या हरियाणा, पंजाब में ज़्यादा है। दूध उत्पादन की दृष्टि से भैंसों का महत्व अधिक है क्योंकि भारत के सकल दूध उत्पादन में भैंसों का योगदान जो है 53% है, यानी देखा जाए तो गाय का जो है बहुत ही कम प्रतिशत यहाँ की गई है। देश में भेड़ें अधिकतर जो है शीत प्रधान या शुष्क प्रधान भागों में पाई जाती है। भेड़ उन क्षेत्रों में कम पाए जाते हैं जहां जलवायु अति उष्ण तथा मानसूनी वर्षा बहुत होती हो। आर्द्र और उष्ण जलवायु में भेड़ों को जो है खुरों का जो है बीमारियों हो सकती है, यानी खुरों की बीमारी जो है आम देखने को मिला है और इसका कारण जो है आर्द्र और उष्ण जलवायु के कारण जो है खुरों की बीमारी लग जाती है। देश में राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां भेड़ों का पालन बड़े पैमानों पर किया जाता है। अन्य पशुओं के अंतर्गत जो है बकरी, ऊंट, घोड़े, याक एवं मिथुन महत्वपूर्ण है। बकरे का पालन उनके मांस एवं दूध उत्पादन के लिए किया जाता है। राजस्थान में बकरों की संख्या अन्य पशुओं की तुलना में अधिक है। ऊंट का पालन पश्चिम राजस्थान एवं उसके संलग्न क्षेत्रों में जैसे गुजरात, हरियाणा एवं पंजाब राज्यों में होते हैं। ऊंट के मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है जो विशेषकर भारत के थार मरुस्थल के लिए उपयुक्त होता है। घोड़े को जो है टट्टू पूरे भारत में पाए जाते हैं और यह विशेषकर जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एवं पंजाब में
पाले जाते हैं। याक जो होता है जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। मिथुन जो है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाया गया है। Our next topic is the most important here, fishing. The fishing is the most important topic. Fishing has been an important occupation of the people in the coastal area. However, in spite of the having a long coastal line and the board is a continental is a self. India as a fishing industry is still a largely in a developing stage. The modernization on the limited scale has started to the recently. Fisheries are of the two types. It is the inland and the open sea. Inland and the open sea, there is the fisheries are two types here. Inland and the open sea. The inland fishing is done in the river, tank, ponds and canals. There is the most important here. And the major rivers like Brahmaputra, Ganga, Satluj, Narmada, Mandi and Godavari and the Nomas is a tank and pond are adopted for fishing. Inland fishing production is accounted for the 2/5 or 40% of total fish production in India during to 1995 to 96. There is important here. Open sea fishing or marine fishing done in a sea water is a kept is a swollen water in our country. More than 2/3 of the marine fish is landed on the western coastal of the India. Well, the remaining 1/3 of the eastern coastal here, India is a kept is a 5.6 lakh ton of fish during to the 2000 to 2001. Though that India has a hugs is a potential for fishing, but the actually catch is a very small. The main factor responsible for the poor performance in the fishing are traditional method. There is an important point here. Responsible for the poor farming of fishing are traditional method, wooden logs and made of boat driven by the human energy and poor social economical condition of the fisherman. There is an important point here. In order of increasing of fish production of the trade, the government has taken to the number of steps including financial assistance for the fishermen, introduction of large vessels and better harbors as a breeding facility, provision of the refrigerated of wagons and the road transport facility, introduction of the accident and insurance schemes, and the marketing of fish and cooperating basis. They are important here. The rapid increase of the production of fish in the country is called Blue Revolution. The Blue Revolution is the most important according to the fishing, and this is synonymous with the sharper farming and equilibrium. There is an important point here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है मत्स्यन, देखिए मत्स्य यानी फिशरिंग कि मछली उत्पादन के क्या अंतर्गत है। देखिए मछली उत्पादन को जो है हम नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है और मछली के उत्पादन जो है बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी जो है भारत इसके लिए अग्रसर है। कहते हैं समुद्र तटबंधीय क्षेत्रों में भारत के जो है मछुआरों की काफ़ी बड़ी संख्या बसती है, क्योंकि समुद्री तटबंधीय क्षेत्र में जो है मछुआरों की संख्या अधिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि मत्स्य व्यवसाय न केवल उनके आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है बल्कि उनके जीवन का पोषक आहार भी है। भारत में बहुत लंबे विस्तार के तटवर्ती क्षेत्र तथा चौड़े महाद्वीपीय मन तट के जो है जलमग्न धरातलीय क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ का मत्स्य उद्योग अभी भी विकसित नहीं हो पाया है। आपको पता ही होगा कि भारत जो है नीचे साइड से लेके जो है काफ़ी क्षेत्र में जो है पानी के क्षेत्र से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है भारत का मत्स्य उद्योग इतना अधिक विकसित नहीं है जितना कि दूसरे देशों में विकसित है। इस उद्योग का आधुनिकीकरण जो है सीमित एवं कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ही हो गया है। मत्स्य व्यवसाय के दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक स्थलीय तथा खुले समुद्र। देखिए एक स्थलीय होता है अंततः स्थलीय और दूसरा जो है खुले समुद्र। अंततः स्थलीय जो है मछुआई नदियों, तालाबों, ताल, तौली और झील, सरोवर में तथा बड़ी बड़ी नहरों में किया जाता है, जो कि महत्वपूर्ण है। भारत में ऐसी बड़ी नदियों में जो है ब्रह्मपुत्र, गंगा, सतलुज, महानदी, गोदावरी इत्यादि आती है। भारत में अंततः स्थायी जो है मछुआई प्रक्रिया द्वारा मत्स्य उत्पादन वर्ष 1995 से 96 के दौरान सकल उत्पादन का सिर्फ 40% ही हुआ था। तो ये कहते हैं बहुत बड़ी विडंबना है कि 40% ही हुआ।
खुले समुद्र में मछुआई जिसे जो है समुद्री मत्स्यिकी भी कहते हैं, हमारे देश में महाद्वीपीय मगन तट के उथले भाग में व्यावसायिक रूप से की जाती है। भारत में जो है पश्चिम समुद्री तटबंधीय क्षेत्र में इस प्रकार की मछुआई बड़े पैमानों पर की जाती है। संपूर्ण समुद्री मत्स्यिकी का 2/3 कार्य पश्चिमी समुद्री तटीय क्षेत्र में संपन्न होती है तथा शेष 1/3 भाग पूर्वी समुद्री तटीय क्षेत्र में होता है। भारत में इस प्रकार के क्रियाकलापों में वर्ष 2000 से 2001 में कुल जो है 5.6 लाख टन मछली जो है पकड़ी गई थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यद्यपि भारत में जो है मछुआही की बहुत बड़ी संभावना तथा संसाधन मौजूद है, फिर भी वास्तविक मछली पकड़ बहुत ही कम है और इस मुख्य कारण इसका व्यवसाय में अकुशल संसाधन का उपयोग है। क्योंकि भारत में देखिए अभी भी जो है ये इतनी विकसित नहीं हो पाया है जितना कि दूसरे देशों में है। कहते हैं यहाँ पर जो है अकुशल जो मछुआरे हैं जिनके वजह से मछली का उत्पादन संभव नहीं हो पाया है, और दूसरे देशों में जहाँ संसाधन है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ पर मत्स्य जो उत्पादन है सबसे अधिक है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भारत के पास इतने नदी और इतने सुविधाएं संसाधन होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है मछली का उत्पादन बहुत ही कम रहता है। कहते हैं मत्स्य उत्पादन था उसका व्यापारिक विपणन को बढ़ा देने की दिशा में सरकार ने कई अभियान एवं अभिनव प्रयोग किए हैं, जैसे मछुआरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, मछुआरों को उनकी पारंपरिक लकड़ियों की नौकाओं की जगह मशीन संचालित जलयान प्रयोग में सहायक देना, अच्छे जो है पोताशय एवं कुशल श्वासन की सुविधाएं जुटाना, अच्छे जो है प्रतिशत रखने वाले बैगन की व्यवस्था करना, जिसमें मछली सुरक्षित भरकर जो सुवियुक्त परिवहन मार्ग से व्यापार विपणन के लिए स्थानांतरित किया जा सके, दुर्घटना के जो है बीमाकरण योजना का समावेश करना तथा जो है मछली का विपणन सहकारी संस्थाओं द्वारा करना। तो सरकार के द्वारा भी कदम उठाई गई है और इसमें मछुआरों को प्रोत्साहन करना और भी ज़रूरी है कि आने वाले समय में इसकी और भी जो है व्यवस्था बढ़ाई जा सके। भारत में मछुआही क्रियाकलापों को प्रोत्साहित कर मछली उत्पादनों को जो है प्रेरित करने की अभियान को नीली क्रांति का नाम दिया गया है, यानी ब्लू रेवोल्यूशन दिया गया है कि नाम से जाना जाता है। और इसके समर्थनीय और समकक्ष क्रियाकलापों को जो है झींगी कृषि भी कहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है पॉइंट था जिसके बारे में नील हरियाणी मछलियों के विषय में, चाहे हमने कैटल फार्मिंग के विषय में विस्तार पूर्वक जाना और विचार किया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छा लगा, अगर आपको त्रिपाण स्टडी पसंद आया तो आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में आपने त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प कर सकते हो। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जहाँ आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, वहाँ पर जो है शेयर का बटन होगा, उसको दबाइए और इस लिंक को जो है कॉपी करके व्हाट्सएप पे लगा दीजिए। जैसे जो बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे उनको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वो देख लेंगे और इससे जो है लाभान्वित भी हो सकेंगे। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कीजिए, क्योंकि अगर मोबाइल सेव नहीं कीजिएगा, चैनल को सेव नहीं कीजिएगा तो हो सकता है अगर बाद में आप अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को आप देखना चाहें और यूट्यूब पर सर्च करें कोई भी टॉपिक तो शायद दूर दूर तक त्रिपाण स्टडी सेंटर नज़र ना आए। तो इसलिए अच्छा है कि सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, जब चाहिए तब देख सकोगे और इसके जो है होम पेज पे आपको सारी वीडियो सुचारू रूप से मिल जाएगा। साथ में त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाया है प्लेलिस्ट की प्रावधान, जिसमें आप सभी वीडियो जो है क्लास के अंतर्गत, टॉपिक के अंतर्गत देख सकते हो।